Hello volunteer. Today we will discuss about NSS program. Hello. Yes, sir. Now you are audible. No, please respond. My screen is visible to all. My voice is clear. Yes, Yes, sir. sir. All is okay, Okay. sir. Yes, sir. Okay. So please, now I am continuing again. So now I am talking about my camera is also visible to all. Yes, we Yes, are. Oh, definitely. okay. So today we are talking about National Service Scheme (NSS). Earlier you also heard about NCC Bharat Scout Guide. Am I right? Yes, आप sir. सबों ने एनसीसी और के बारे में सुना होगा, भारत स्काउट गाइड के बारे में सुना होगा, Yes, है sir. ना? उसी तरह से कुछ मिलता जुलता हमारा है नेशनल सर्विस स्कीम। आज इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, प्लीज अपना माइक माइक आप म्यूट कर ले। So my name is Roshan Kumar and I am a student coordinator. I am also a BTech third year student doing civil engineering. So now today what is our agenda on the screen? First is introduction, then objective, team, area of focus, then we will talk about benefits. What you guys will get benefited through this program, through this NSS. Okay. So now I am continuing. Here is the introduction slide. In this, you are seeing that the National Service Scheme (NSS) is a central sector scheme, okay, and of Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sport. It provide opportunity to the student youth like us. You are seeing that there is a 11th, 12th, and student from technical background, okay. So the sole aim of the NSS is to provide hands-on experience to young students in delivering community service. Next, I'm just clearing this. Please wait. The scheme was launched by Gandhi Century in year 1969. ये जो स्कीम नेशनल सर्विस स्कीम जो है ये 1960 सितंबर 1969 में ये लॉन्च किया गया गांधी जी के द्वारा। ओके, एम्ड एट डेवलपिंग स्टूडेंट पर्सनैलिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी के सर्विस के लिए, सर्विस इन द सेंस उनके लिए कुछ वेलफेयर का काम, कुछ रिफॉर्मेशन का काम, ये करके हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका एम है। डिटेल में डिस्कस हम इसके बाद करेंगे। एनएसएस इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ यंग पीपल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड +2 लेवल एज वेल। आपका जो एनएसएस है इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन, यंग पीपल जो यूथ होते हैं वो इनसे जुड़ते हैं, हम उनके थ्रू आगे बढ़ते हैं। और ये एक तरह से ना राष्ट्र निर्माण की बातें हो रही है यहाँ पे। हम लोग इस तरह से अपने सोसाइटी को रिफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। Okay, next, organized by the student. The cardinal principle of NSS program is to get a sense of involvement in the task of nation building. Okay, I just clear this point. Organized by the student and teachers through their combined participation in community service. इसमें जैसे अभी हमारे कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे इन्वॉल्व इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? हमारे जो सर हैं, फैकल्टी मेंबर तबरेज सर है, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर हैं। तो इस तरह से इन सभी इन्वॉल्व है और हम आप लोग के मदद से, हम सब वॉलंटियर के मदद से ये जो भी हम टास्क लेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम एक सोसाइटी को एक अच्छा रूप देंगे, उसको सुधारेंगे। हो सकता है हम कल होके कि 2-4 बच्चे को पढ़ा के आगे निकले, कल होके अगर ठंड का समय है ब्लैंकेट डोनेट करते हैं। तो इस तरह से हम सोसाइटी को थोड़ा रिफॉर्म कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड जिस पे वो था उससे थोड़ा हम ऊपर ले जा सकते हैं अगर सोचे तो। Next, the last and but very important point, motto of NSS. Here is simple 3 to 4 word, not me but you. इसका मीनिंग क्या है? नोट मी बट यू, यहाँ इससे क्लियर होता है क्या? इसमें हमेशा ना दूसरे के काम को अप्रिसिएट करना है, ताकि तब ना आगे बढ़ेगा वो। तो दूसरे को अप्रिसिएट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर ही रहे होंगे। तो इस तरह से हम इसका मोटो को भी फुलफिल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सो माय नेक्स्ट स्लाइड इज एनएसएस ऑब्जेक्टिव. NSS objective here mention some point. Understand the community in which they work,
understand themselves in relation to the community, identify the need and problem. First one is the understand the community in which they work. हम लोग को सोचना है किस कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी इन द सेंस हमारा अगर 5 लोग का ग्रुप है, वो लोग कोई गलत एक्टिविटी में कुछ है, हम उसको गए सुधार दिए, कुछ एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर दिए, तो इस तरह से वो भी एक कम्युनिटी है, ठीक है ना। किसी सोसाइटी की बात करते हैं, वो भी एक कम्युनिटी का पार्ट होगा। तो इस तरह से एक कम्युनिटी को स्पॉट करेंगे, उसके बाद उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, उनके बारे में हम लोग सोचेंगे, रिफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक। अंडरस्टैंड देमसेल्फ इन रिलेशन टू देयर कम्युनिटी, आइडेंटिफाई द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी एंड इन्वॉल्व देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उस कम्युनिटी के लिए क्या प्रॉब्लम है अभी, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मे बी वो किसी पर्सनल किसी का हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड हो सकता है, और भी कुछ इशू हो सकते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह को हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम लोग का ये काम होगा। एनएसएस का ये ऑब्जेक्टिव है, इस सबको सॉल्व करना। नेक्स्ट है हमारा डेवलप अमंग देमसेल्फ इन ए सेंस ऑफ सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल, सामाजिक और जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम लोग बियर करेंगे, उसको डेवलप कराएंगे, लोगों तक शेयर करेंगे। यूटिलाइज देयर नॉलेज इन फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अपने जो नॉलेज है उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसको सही जगह लगा के उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है डेवलप कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप लिविंग एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर, जो भी हमारा ग्रुप लिविंग या कोई है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जैसे हमारा एनएसएस में कुछ वॉलेंटियर होंगे, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस तरह से हम ग्रुप बढ़ाएंगे, सबको बोलेंगे। हो सकता है जिस सोसाइटी के बारे में हम सोच रहे हैं वहां से भी लोगों को हम कनेक्ट करें, और एक सही चीज के लिए उन सब के लिए एक तरह से मेंटर का काम करें, गाइड का काम करें, कि तो वो इस पॉइंट में है। गेन स्किल in mobilizing community participation, acquire leadership qualities in democratic attitude, develop capacity to meet emergency and natural disaster, practice national integration and social harmony। इसमें देखिए हम लोग अपना स्किल डेवलपमेंट करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड लाएंगे। डेमोक्रेटिक इन द सेंस यहाँ कह सकते हैं ना, सबकी बात सुनते हुए काम करना है, इस तरह से अपनी बात पे नहीं रहना, हमको सबको लेके चलना है, साथ चलना है। इसमें जो इसका मोटो था ना, मी नॉट यू, तो इसको लाइन ये बता रहा है। नेक्स्ट है डेवलप कैपेसिटी मीट इमरजेंसी, या कोई नेचुरल डिजास्टर का टाइम होगा, उस वक्त हम लोग को आगे आना पड़ेगा, ठीक ना। जिस सोसाइटी के हम बारे में अगर कॉलेज लेवल पे सोच रहे हैं, केवल उसके लिए नहीं, हमारा गांव जो होगा, हमारा शहर होगा, वहां के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल हार्मोनी। नेशनल इंटीग्रेशन, देश के एक साथ होने, एकजुटता के बारे में सोचेंगे, सोशल हार्मोनी के बारे में सोचेंगे, समाज कल्याण के बारे में सोचेंगे। सो these are our objective. Next point, who we are. Our group is like this. MD Tabrez sir, who is the faculty coordinator, Department of Electrical Engineering, Motihari College of Engineering, and I am Roshan Kumar, student coordinator, Department of Civil Engineering. I am a BTech third year student, and then you guys, you are because you are a volunteer, and आप लोग के हेल्प से ना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम सबको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और I just considering that you are also an engineering student, एंड मैं जितना बिजी हूँ आप भी होंगे, अपना काम होगा, अपना टास्क होगा, असाइनमेंट होगा, बहुत सारी चीजें सबको करते हुए हम लोग सैटरडे को एक टाइम निकालेंगे सारे एक्टिविटीज के लिए, 1 से 2 घंटा टाइम देंगे, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा इस तरह का ग्रुप बनेगा, ओके। नेक्स्ट एरिया ऑफ फोकस, कौन कौन से हमने और सर ने बैठ के ये सारी चीज डिसाइड किया था, और वैसे एनएसएस भी इन्हीं बातों को फोकस करता है, जो इस पे आप काम कर सकते हैं, इस तरह से आप सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज पॉइंट्स आर लाइक एरिया ऑफ फोकस एट कॉलेज कैंपस लेवल, एट कॉलेज लेवल, एंड देन college for college adopted village. So in college campus what will we do, and what is our focus, area of focus. So first one is campus cleaner. सबसे पहले तो हमको अपना स्वच्छ भारत अभियान है, इस तरह का
जो नरेंद्र मोदी सर का है, तो उसी तरह का हमको तो पहले कॉलेज लेवल पे तो ये देखना पड़ेगा ना। अगर कोई सफाई कर्मचारी है या कोई भी वो देख रहे हैं जो वो सही से साफ वाफ नहीं कर रहा है, तो उनको बोलेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे आप ऐसे न ऐसे इसको साफ सफाई रखिए, ठीक है, कैंपस क्लीन रहेगा। तो हम लोग को डायरेक्टली वो अलग बात है, ठीक है, बट हम लोग उनको बेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं आप ऐसे कीजिए, इन्वॉल्व भी होंगे, उनको सिखा भी सकते हैं। तो इस तरह से होगा हमारा। अगर बगल में सपोज NIT पटना की हम उदाहरण देते हैं, कुछ ही दिन पहले मैं गया था, तो मैंने देखा था जो गंगा साइड में जो भी पन्नी वन्नी ये सब प्लास्टिक था, तो वो सारे NSS वॉलंटियर्स जो थे, NSS NCC वाले जो थे, वो सारे वो उसको पूरा खोद रहे थे और उसको ले जा रहे थे कहीं पे। तो इस तरह का हम लोग सोच सकते हैं अपने कैंपस के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस एट कॉलेज लेवल। हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हमको अपने कॉलेज स्टूडेंट जो भी हैं या कॉलेज में जो भी फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, सबको इसके लिए अवेयर करेंगे, एक कैंप लगाएंगे, उसमें हम उनके उसके बारे में बताएंगे। एक लड़का होगा जो प्रेजेंट कर रहा होगा, तो कोई वॉलंटियर होगा जो प्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम हम रखेंगे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इसमें हम बिजली कैसे बनता है, तो अगर आप बिजली खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है, इन सारी चीजों को बताएंगे। वाटर जो आप ये कर रहे हैं, तो इससे बर्बाद कर रहे हैं, इससे क्या होगा, तो हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा योगा एंड अदर इवेंट वी विल ऑर्गेनाइज। सो योगा और भी कुछ इवेंट होगा इससे रिलेटेड, या फिर रिपब्लिक डे में परेड हो सकता है। तो ये सारा चीज हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये मेरा हम लोग का ना फोकस ऑफ एरिया होना चाहिए। सो नेक्स्ट, आवर कॉलेज एडॉप्टेड विलेज। कॉलेज एडॉप्टेड विलेज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 डे टू गिव योर टाइम टू द विलेज स्टूडेंट। हम कम से कम ना 1-2 दिन चाहेंगे तो दे सकते हैं। गांव के जो स्टूडेंट, पहला दिन कोई और लड़का जाएगा, दूसरा दिन कोई और लड़का जाएगा, इस तरह से हम लोग टाइम दे सकते हैं उन बच्चों को। जब मैंने गांव में पता किया ना, तो बहुत कम भी 10th पास कर पाते हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी मिला बाहर गया तब पढ़ पाता है। तो इस तरह का कुछ सीन है। नहीं तो इन सबको मेन मोतिहारी जो है, छटौनी, सब वहां जाना पड़ता है इन सबको पढ़ने के लिए। तो कितना बड़ा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल इन लोगों को करना पड़ता है साइकिल से। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ। तो हम लोग, और वो भी 9-10 के बच्चे जा पाते हैं, जो भी जूनियर बच्चे हैं, स्कूल लेवल के हैं, मिडिल स्कूल लेवल के हैं, तो वो सबको काफ़ी दिक्कत हो पा रहा है, वो सही से एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। तो उनके बारे में वो कोरोना से रिलेटेड हो या फिर एंटी वाइन से रिलेटेड हो, शराब, इस तरह से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैरिटी। ठंड के टाइम में कंबल सब, ब्लैंकेट सब हम उनको डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हम उनके बारे में सोच सकते हैं। हमारे कॉलेज में 2K17 बैच द्वारा एक इनिशिएटिव किया गया था, जो कि आपको पार्किंग जो है वहाँ बगल में लगा हुआ है एक बैनर, वहाँ आपको दिख रहा होगा। जो अगर कमी है तो आप ले जाए कपड़ा, नहीं ज़्यादा है तो यहाँ रख जाए, इस तरह का कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वहाँ बहुत सारे कपड़ा टंगा है पुराना, जो भी स्टूडेंट होता है अपना रख देता है, फिर कोई बाहर का आदमी आता है ले जाता है। तो इस तरह का सर्कल बन रहा है। तो ये सारी चीज हम लोग भी इनिशिएट कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से। सो आवर these are our area of focus. Next one is benefits. By doing all these activities, by doing all these works, what will you guys will provide? Okay, what will you got benefited through this program NSS? प्रेफरेंस इन एडमिशन एम्प्लॉयमेंट। एडमिशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ओके, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, यहाँ मैंने मेंशन किया एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन जब आप गूगल करोगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और फॉरेन के भी जो कुछ यूनिवर्सिटी है, उसमें इस तरह का प्रोग्राम बहुत सारे ऐसा है जिसमें NSS का प्रोग्राम सब होता है। तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना काफ़ी सहूलियत होगा। आपका जो मार्किंग क्राइटेरिया होगा, अगर कम भी रहेगा तो इसके आधार पे फुलफिल होगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जो भी जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉरेज एंड पेशेंस। ये आपका डेवलप करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, करेज डेवलप करेगा और पेशेंस भी डेवलप करेगा। गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू मीट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ।
आपको जब आप इसके अंदर आओगे, अगर सही में आप काम कर रहे हो इसके लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, अपने ग्रुप के साथ वर्क कर रहे हो एज ए वॉलंटियर, तो आपको अलग अलग तबके के लोग सोसाइटी में मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लाइफ के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है ना। Next, he gets the opportunity to participate in various national and state level program. नेशनल और स्टेट लेवल का बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप इसके थ्रू, अगर वॉलंटियर में आपका पोजीशन अच्छा है 1 to 5 इस तरह का है, तो आपको भेजा जा सकता है कॉलेज लेवल से, वहाँ पे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे आपको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन। आपको इसका इंदिरा गांधी अवार्ड करके भी कुछ ऐसा है, आप गूगल भी कर सकते हो। तो ये अवार्ड आपको दिया जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कुछ यहाँ पे प्रोसेस भी है। एनएसएस वॉलंटियर कंप्लीटिंग 240 आवर्स ऑफ रेगुलर कम्युनिटी सर्विस इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर इज टू बी इशूड एनएसएस सर्टिफिकेट बाय द कॉलेज। आपको जब 2 साल के अंदर आपको 240 घंटे जब आप इसके लिए अपना टाइम दोगे, वो बहुत तरीके हो सकता है, तो आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, है ना। एक कॉलेज से आपको मैक्स टू मैक्स 50 बच्चों को चयन करना है जिसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। तो यही सर्कल हर साल चलता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो भी 20 बैच के होंगे तो वो अभी उसके लिए 2 साल और है, तो वो काम कर सकते हैं 1.5 से 2 साल, तो इसमें जुड़ के अपना कुछ कर सकते हैं। और जो 21 बैच के हैं, 22 बैच के लिए उनके तो लिए तो प्रॉपर टाइम है। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस, फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, उसका किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम वॉलंटियर बनाएंगे, जो कि आप लोगों को मैंने बनाया है, ग्रुप में जोड़ा है, आप लोग ने फॉर्म भरा, उस आधार पे मैक्स टू मैक्स हम लोग 50 को सेलेक्ट करेंगे, और उन सबों को इस तरह का ये डायरी प्रोवाइड होगा। तो डायरी का एक हम आपको दिखा देते हैं, फुल डायरी। ये रहा आपका फुल डायरी। फर्स्ट पेज इस तरह से है कुछ, उसके बाद ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली हम ये दिखाने के लिए आपको लाए हैं। डेट और टाइम आपको यहाँ रोज जो आप कुछ भी करोगे, हारमोनी डायरी है, मतलब भलाई का ये डायरी है। इसमें आप जैसे सपोज करो, आपने 2 लोग को अवेयर किया, कोई अंधा व्यक्ति रोड पे खड़ा था, उनको आपने इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करवाया, तो आप यहाँ डेट में भी हो सके तो टाइम लिखोगे, और यहाँ पे क्या आपने टास्क किया और कौन आपके इंस्पेक्टर हैं उनसे आप साइन करवाओगे। आप अपना टास्क कंप्लीट करोगे, यहाँ लिखोगे डेट, और इनसे इस पर ना उनसे साइन करवाओगे। जब हम भारत स्काउट गाइड में थे तो वहाँ भी इस तरह का मैंने डायरी बनाया था, और उस टाइम में मैं हाई स्कूल में था, तो मैं यहाँ मेंशन किया था, जैसे प्रतिदिन हम लोग को लगाना होता था 5 तुलसी का पौधा, तो यहाँ हम लोग मेंशन करते थे आज मैंने अपने स्कूल प्रांगण में 5 तुलसी का पौधा लगाया। और उसके बाद हमारे जो सर थे, उनसे हम लोग मेंटर थे, उनसे हम लोग यहाँ सिग्नेचर करवाते थे। तो इस तरह का सीन था। एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग Yes, sir. Good evening, sir. Myself, Ritesh Pandey. I'm from Buxar. I got Yeah. Tripoli branch in MC Motihari. Okay. Next, Gaurav. Yeah, please. One more thing you also mentioned in your introduction. अगर आपने इससे पहले एनएसएस या किसी और चीज में जुड़ा है ना, और उसमें कुछ अगर काम किए हो, टास्क किए हो, तो वो भी थोड़ा आप बता दो तो मुझे और सही रहेगा। साहिल, अपने माइक को ऑन करो। Yes, sir. Sir, myself माइक ऑन Sahil. करो। I'm from Computer Science Engineering branch, and it's my first time in NSS. ओके ओके। Thank नेक्स्ट, you. अभिजीत कनवाल। ओके फाइन। Ranjit, unmute your mic. राहुल कुमार सिंह। I am seeing that one person is credit B customer helpline number. Who is this? Hello, Okay. I'm audible, Yeah, sir. Rahul. Myself Abhijit. Okay, okay. Okay, fine. Akanksha, Avdesh, Riddhis, and Roshan Kumar Gupta. Roshan Kumar Gupta, please give his introduction to the whole team.
अवधेश, रिद्धि। Good evening, sir. My name is Yeah. Avdesh. I got a CSE branch. I am from 22K. Okay. This is my first time in NSS program. Okay. You told that 22K. So please correct this. Okay, fine. Riddhi Saraf क्या? रिद्धि सराफ क्या? रोशन गुप्ता. Okay, fine, no problem. One more thing I am telling you. Others, please give your introduction. Hello everyone, my name is Adars and I am, yes Deepak, I am a student of Motihari College of Engineering Motihari and BTech third year student. ओके ओके. तो क्या आप लोग जितने हो मतलब एनएसएस के बारे में सब कुछ समझ लिए?